Now I'm completing textual exercises. Exercise A, choose the correct option and fill in the blanks. Number 1, what is essential for? Water is essential for all forms of life. हम water हम सबके लिए उतने ही important है. We should use CFL in place of conventional bulbs. हमें conventional bulbs की जगह CFL use करने चाहिए. Number 3, wind energy is renewable resources. Wind energy renewable resources हैं. Number 4, bicycle can be used to travel short distance. Bicycle short distance travel करने के लिए useful है. Number 5, carpool can help in saving fuel. Carpool can help in saving fuel. Now, natural resources are nature's gifts to humankind. Name these gifts are all jumbled, unscramble the letters and find out the resources. Here the words are just scrambled. They are mixed together. So you have to just keep the words, keep the letters in the proper place and make a word which are one kind of natural resources. So this is the wind, soil, air, sun, coal. It's called coal, metal, forest, and water. Now match the following: water, hydroelectric power, forestation, planting trees, coal, non-renewable resources, rainwater harvesting, it's a reservoir, and sun, that is solar cooker. Exercise D, very short answers. What is a natural resource? Natural resource क्या है? Natural resource, the material that we can get from nature is called natural resource. What are natural resources classified as? Natural resources are classified as renewable and non-renewable resources. Why are domestic and wild animals important? Domestic और wild animal important क्यों हैं? Domestic and wild animals are important. Also हम कट कर देंगे. Domestic animals and wild animals are important as they form important links in the food chain. Exercise E, short answer questions. Number 1, give the full form of CFL and CNG. So, the full form of CFL is compact fluorescent lights and full form for CNG is compressed natural gas. What is soil? What is made up of? यहाँ what is soil का मतलब यहाँ आपको सीधा soil किससे बनता है वो आंसर दिया गया है. दैट मीन्स यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया है सॉइल क्या है. सो हियर द आंसर विल बी सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस. सॉइल इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड सॉइल इज मेड अप ऑफ स्टोन, सैंड, क्ले, डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स. तो ये दोनों सेंटेंस मिला के आपका आंसर कंप्लीट होगा. व्हाट इज सॉइल? तो उसका आंसर है सॉइल इज अनरिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ. तो आंसर आएगा सॉइल इज मेड अप ऑफ स्टोन, सैंड, क्ले, डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स. नाउ नेम few things that can be recycled. So the answer is plastic, paper, newspaper, cardboard, aluminum cans. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट आपको इसमें से जो भी लिखना है. वैसे स्टील कैंस भी रिसाइकल हो सकते हैं, ग्लास कंटेनर्स रिसाइकल हो सकते हैं. जो ग्लासेस हमारे टूट जाते हैं अगर कांच एक जगह इकट्ठा करके हम दे दें तो वो चीज़ें भी रिसाइकल हो जाती है. बट यू कैन राइट ऑल दिस आंसर्स. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये एग्जाम में नहीं आने वाले हैं बट देन टू इन व्हाट वेज वी कैन सेव द वाटर.
ये जब मैं चैप्टर करा रही थी तब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं। सो यस, ये सारे तरीकों से हम पानी बचा सकते हैं। इन वॉट वेज कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड, हम खाने का वेस्टेज कैसे कम कर सकते हैं? सो द आंसर इज दिस, ऐसे हम फूड वेस्टेज कम कर सकते हैं। एंड स्टेट द वेज ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचा सकते हैं? हम इन सारे तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। ये सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं अपने वीडियोस में दे चुकी हूँ, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and that's it for the day. With this we have already completed our course for essay 2 examinations, and I have already given you the worksheet part 1 that includes draw the diagrams and distinguish between and true or false or fill in the blanks, I don't know, but 3 क्वेश्चंस में दे चुकी हूँ, बाकी के आई गिव यू एज सुन एज पॉसिबल्स। तब तक आपको रिविजन अगर करना है तो टेक्सचुअल जितना भी मैटर है आप टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। यू कैन रिवाइज दिस ऑल, ठीक है? एंड आई गिव यू रिविजन वर्कशीट विद आंसर कीज एज सुन एज पॉसिबल्स। मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं। आपका जो भी मिस हुआ है यू कैन टेक आंसर्स फ्रॉम देयर, ठीक है? एक्सप्लेनेशन पार्ट मेरा सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप मेरे चैनल पे जाके सारे ईवीएस के क्वेश्चंस वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। मैंने सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन किए हैं, मैंने सारे चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक फ्रॉम देयर। मैं रिवीजन वर्कशीट दूंगी और उसी के साथ मैं आंसर की शेयर कर दूंगी। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड दैट्स इट फॉर द डे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।